السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ ہندوستانی فوج کے پاکستان کے اندرونی علاقوں میں طاقتور حملے، دونوں ممالک کے بیچ کشیدگی بڑھ گئی۔ کمانڈر ویمیکا سنگھ نے کہا ہندوستانی فوج دشمن کے منصوبوں کو بنائے گی ناکام۔ پاکستان نے بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول پر واقع کم سے کم 26 سے زائد مقامات پر فضائی حملوں کی کوشش کی۔ ہندوستانی فوج نے دیا کرارا جواب۔ کرنل صفیہ قریشی کی پریس کانفرنس۔ پاکستانی فوج نے ہندوستان کے خلاف آپریشن بنیاد مرصوص کے نام سے جوابی کارروائی کا کیا آغاز۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جوہری ہتھیاروں سے متعلق نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کی بات چیت، تنازعہ کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ اور حماس نے مغربی کنارے میں ظالم اسرائیل کی جانب سے فلسطینی مزاحمت کاروں کے قتل اور فلسطینی عوام کو مسلسل نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی۔ کہا شہدائے غزہ کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے بڑی خبروں سے۔ ہندوستانی فوج کے پاکستان کے اندرونی علاقوں میں شدید حملوں سے مایوس پاکستان نے اپنی مغربی سرحدوں پر کئی ڈرون حملے کر دیے جنہیں ہندوستانی فضائی دفاعی نظام نے تباہ کیا۔ ہندوستانی فوج نے آج کہا کہ پاکستان ہماری مغربی سرحدوں پر ڈرون حملوں اور دیگر ہتھیاروں سے حملے کر رہا ہے۔ فوج نے کہا کہ ایسے ایک واقعے میں آج صبح تقریباً 5 بجے امرتسر میں خاصا کینٹ پر دشمن کے کئی مسلح ڈرون پرواز کرتے دیکھے گئے۔ دشمن کے ڈرون کو ہمارے فضائی دفاعی یونٹ نے فوری طور پر تباہ کیا ہے۔ فوج نے کہا کہ ہندوستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور شہریوں کو خطرے میں ڈالنے کی پاکستان کی اس مذموم کوشش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ کمانڈر ویمیکا سنگھ نے کہا کہ ہندوستانی فوج دشمن یعنی پاکستان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنائے گی۔ Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare Center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur and Chunya were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar sites at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions. While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derangyari and Chandigarh forward. ہندوستانی فوج کی خاتون کرنل صفیہ قریشی نے پریس کانفرنس کے دوران ان اہم مقامات کی تفصیلات پیش کی جنہیں پاکستان نے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی افواج نے رات کے اندھیرے میں ہندوستانی حدود کے اندر فضائی حملے کیے اور نہ صرف ایئر بیس اسٹیشن بلکہ اسکولوں اور ہسپتالوں جیسے سویلین ڈھانچوں کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ کرنل قریشی کے مطابق پاکستان نے بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول پر واقع کم سے کم 26 سے زیادہ مقامات پر فضائی حملے کیے۔ ان مقامات میں جموں کشمیر سے لے کر پنجاب، راجستھان اور گجرات تک کے علاقوں کے اہم ایئر بیس شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر حملوں کو ہندوستانی فضائیہ نے کامیابی کے ساتھ ناکام بنایا۔
चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की शरारंगेजी के दरमियान वजारत खारजा, फौज और फिजाया ने हफ्ते के रोज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान किस तरह मुसाफिर तैयारों की आड़ में अपनी नापाक सरगर्मियां अंजाम देने की कोशिश में है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी तैनाती बढ़ाकर हालात को मजीद बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से दानिस्ता तौर पर हिंदुस्तानी फिजाई अड्डों को निशाना बनाने के बाद हमारी अफवाज ने फौरी रद्दअमल में टेक्निकल तनसीबात, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइंस और असलाह ज़ख़ीरा करने वाले मराकिज़ पर हमले किए हैं। जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you. हिंदुस्तानी फौज की जानिब से शुरू करदा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, दसोहा, होशियारपुर, जालंधर और फिरोजपुर अजला में ड्रोन हमले किए, जो आज हफ्ते की सुबह तक जारी रहे। इस धमाके के बाद 3 से 4 किलोमीटर के इलाके में लोगों के घरों की खिड़कियों के शीशे टूटने की इत्तला थे। 4 धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों ने मीडिया से इन हमलों के हवाले से बातचीत की। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ, ਕਿੰਨੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ? ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਹ ਜਿਵੇਂ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। सर इधर ना सामान से कोई लोहे की चीज़ गिरी इनके घर में, तो आग जान के अग लग गई सी, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਅੱਗ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਚਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? 3 ਹੀ ਹੈ ਜੀ। 3 ਹੀ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ 2 ਬਾਪ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਇਹ 8 8:30 ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸਰ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗੀ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। गिरने के बाद ब्लास्ट हुआ? ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਫਾਈਲਰ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਆਦਾ ਘਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। उसके बाद भी कुछ गिरा है उस जगह? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
पाकिस्तानी फौज ने कहा है कि उसने हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के नाम से जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जौहरी हथियारों से मुताल्लिक़ नेशनल कमांड अथॉरिटी का हंगामी इजलास तलब किया। पाकिस्तानी फौजी तर्जुमान के मुताबिक दरमियानी फासले तक मार करने वाले फतह मिसाइल इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान के शहरों पठानकोट और उधमपुर में वाक़ मिसाइल ज़ख़ीरागाह और फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक हफ्ते के दिन अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बातचीत की, तनाज़ा कम करने के लिए सालिसी की पेशकश भी की। वाज़ेह है कि फ़ोन कॉल ऐसे वक्त में हुई जबकि हिंद पाक कशीदगी में इजाफा हुआ है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रब्ता किया और इस बात पर जोर दिया गया कि फ़रीक़ैन कशीदगी कम करने के तरीक़े ढूंढें। जनरल आसिम मुनीर से बात करते हुए मुस्तक़बिल में तनाज़े से बचने के लिए बातचीत का आगाज़ करने के लिए उन्होंने अमेरिका की जानिब से सालिसी की पेशकश भी की है। और अब रुख करते हैं फ़लस्तीन की जानिब। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने मगरबी किनारे में ज़ालिम इसराइली कार्रवाइयों के दौरान फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के कत्ल और फ़लस्तीनी अवाम को मुसलसल निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत की और कहा कि तमाम इक़दामात एक नाकाम कोशिश है जिसका मकसद मगरबी किनारे में बढ़ती हुई मुज़ाहमती लहर को दबाना है। शुहदाए गज़ा को खिराज पेश किया गया और हमास ने कुर्बानियों को फ़लस्तीनी तहरीक आज़ादी के लिए अहम करार दिया है। बयान में हमास ने मगरबी किनारे के बाशिंदों से अपील की कि वो मुज़ाहमत का भरपूर साथ दें और उनकी हर मुमकिन मदद फराहम करें। हमास ने नौजवानों को पैगाम दिया कि वो ज़ालिम इसराइल और उसके गासिब आबादकारों के खिलाफ अपनी कार्रवाई में शिद्दत लाएं ताकि फाशिस्ट नेतन्याहू की हुकूमत को उसके जराइम की भारी कीमत चुकाना पड़े। और आपको ये भी बताते चलें कि काबिल इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर नाबलुस के मशरक़ी इलाके में वाक़ घर का मुहासरा कर लिया और वहाँ मौजूद 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। दोनों मुजाहिदीन ने घर पर हमले के दौरान ज़ालिम फ़ौज से भरपूर मुसल्लह मुज़ाहमत की। ज़ालिम फ़ौज ने न सिर्फ इलाके का मुहासरा किया बल्कि हस्पताल के एम्बुलेंसों को भी मौके पर पहुँचने से रोक दिया गया, जिससे ज़ख्मियों को फ़ौरी तिब्बी इमदाद नहीं मिल सकी। मुकामी ज़राए ने तस्दीक की है कि इस मुसल्लह झड़प में जरीन बटालियन के कमांडर नूर अब्दुल करीम और नौजवान हिकमत अब्दुल नबी जाम शहादत नोश कर गए। दोनों नौजवान ज़ालिम इसराइल की सफ़ाकियत के खिलाफ मुज़ाहमत के अलमबार थे। ये वाक़या एक बार फिर इस हकीकत को उजागर करता है कि ज़ालिम इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर भी जिंदा रहने का हक़ देने तैयार नहीं है और आए दिन बेगुनाह नौजवानों को निशाना बनाकर फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को कुचलने की नाकाम कोशिशों का सिलसिला ज़ालिम इसराइल ने जारी रखा हुआ है। और अब आखिर में टाइम्स पर डालेंगे एक और नज़र। हिंदुस्तानी फौज के पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में ताकतवर हमले, दोनों ममालिक के बीच कशीदगी बढ़ गई। कमांडर विवेका सिंह ने कहा हिंदुस्तानी फौज दुश्मन के मंसूबों को बनाएगी नाकाम। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ई कम से कम 26 से ज़ायद मुकामात पर फ़िज़ाई हमलों की कोशिश की। हिंदुस्तानी फौज ने दिया करारा जवाब। कर्नल सुफिया कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के नाम से जवाबी कार्रवाई का किया आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जौहरी हथियारों से मुताल्लिक़ नेशनल कमांड अथॉरिटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से की बातचीत, तनाज़ा कम करने के लिए सालिसी की पेशकश। और हमास ने मगरबी किनारे में ज़ालिम इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के कत्ल और फ़लस्तीनी अवाम को मुसलसल निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत की। कहा शुहदाए गाज़ा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आलमी खबरनामे का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।